اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. شرح نوع التمییز. التمییز ضربان مفسر لمفرد و مفسر لنسبت. تمییز مفسر لمفرد. ہماری بحث چل رہی تھی تمییز میں، جو کہ ثانی من المنصوبات میں سے تھے. تو سب سے پہلے ہم نے اس کی تعریف کی. تعریف میں 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. سب سے پہلی چیز تعریف میں کہا کہ تمییز اسم ہوتے ہیں. دوسری چیز فضلہ ہوتے ہیں. تیسری چیز نکرہ ہوتے ہیں. چوتھی چیز جامد ہوتے ہیں. پانچویں چیز جو ذات کے اندر مبہم پائے جاتے ہیں اس کو تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی توضیح کر رہے ہوتے ہیں. 5 چیزیں. اور یہ جو 3 چیزوں میں حال کے ساتھ مشترک ہے، 2 چیزوں میں مختلف ہے. اسم ہونے میں، فضلہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں یہ حال کے ساتھ مشابہت ہے. لیکن باقی 2 چیزوں میں چونکہ حال جو ہے کسی چیز کی حیات کو بیان کرتے ہیں، تمییز کسی ذات کی اس ابہام کو دور کر رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں میں وہ حال کے ساتھ افتراق رکھتے ہیں، باقی 3 چیزوں میں اتحاد ہے. یہ ہم نے خلاصے کے طور پر آپ کے لیے بیان کیا، چونکہ وہ کل کا جو درس تھا جو اس کا مکمل خلاصہ بھی ہے اور وہی بات ہے، اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی اس میں. آج فرماتے ہیں تمییز کی جو ہے 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو ہے فرماتے ہیں کہ تمییز جو ہے مفسر ہوتے ہیں مفرد کے لیے. اب یہ الفاظ دیکھنے میں آسان ہے لیکن تھوڑا سا دقت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جو کبھی کبھار ہوتا ہے نا، عربی لوگ کہتے ہیں ابھی زبان عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن کو، لیکن حقیقت میں بہت سارے الفاظ وہی عربی ہوتے ہیں لیکن معنی کیا ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں. جیسے لفظ قائلون، قائلون وہ عام جو قال یقولو سے لیتے ہیں، حالانکہ وہ قیلولہ سے ہے. جو عربی میں سمجھنے والے، عربی جو زبان بولنے والے اس کو قال یقولو سے تعبیر کرتے ہیں بولنے والے، حالانکہ وہ قیلولہ کے معنی میں اس طرح. تو یہ جو الفاظ بھی اسی طرح یہاں پہ تھوڑا سا تمییز جو ہے یا مفرد کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں یا نسبت کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. 2 چیزیں. مفرد کی تفسیر سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز مفرد ہے، مثلا کوئی اسم مفرد ہے، کوئی چیز مفرد ہے، اس کی وہ تفسیر کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، تمییز مفسر مفرد لمفرد کہیں گے. ایک یا جو ہے تفسیر جو ہے وہ تمییز جو ہے تفسیر کر رہے کس کی، نسبت کی. نسبت کہاں پر ہوتے ہیں، 2 چیزوں کے درمیان، 2 جملے کے درمیان، 2 اسم کے درمیان، 2 چیزوں کے درمیان. اہم چیز یہ ہے کہ وہ 2 چیزوں کے درمیان ہوتی ہے. نسبت کا مطلب ہی کسی کو کسی کا نسبت دینا. نسبت کا معنی ہی تب بنتے جب 2 چیزیں ہوں. تو اس نسبت کی توضیح کر رہے ہوتے ہیں. کبھی مفرد کی توضیح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نسبت کی توضیح کر رہے ہوتے ہیں. اور جو مفرد کی توضیح کر رہے ہیں اس کے جو ہے بات جو ہے اس کی جو متوقعات ہے، یعنی جو ممکنات ہے، وہ تقریباً کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ کیا ہوتے ہیں، مفرد کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی 4 مقامات تقریباً بیان کر رہے ہیں جو مفرد کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں. یعنی 4 مقامات ایسے ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ مفرد کی تفسیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ ہم اس کی توضیح کرتے جائیں گے. شرح التمییز ضربان. تمییز کی 2 قسمیں ہیں، مفسر لمفرد و مفسر لنسبت. ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ مفرد کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، ایک نسبت کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. تمییز مفسر لمفرد. اب جو تمییز مفسر یعنی تفسیر کر رہے کس کی، مفرد کی. فمفسر لمفرد لہو. جو مفرد کی تفسیر واقع ہوتے ہیں مضان، چند جگہ ہیں. یعنی مضان کا ویسے لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو زن سے ہے،
یعنی ممکنہ توقع جو کرتے ہیں مفرد کی تفسیر، یقع بعدہا، یہ 4 چیزیں بیان کریں گے جن کے بعد جو ہے مفرد کی تفسیر ہوتے ہیں۔ مظان یعنی وہ مواقع جہاں پہ گمان پائے جاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے مفرد کی تفسیر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مظان یعنی بعض موارد ایسے ہیں یقع بعدہا جہاں اس کے بعد اس مفرد اسم کے بعد جو ہے تمیز اس کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ احدھا پہلی چیز المقادیر، مقادیر ہے۔ مقادیر یعنی مقادیر کا مطلب ہوتا ہے پیمائش، یہاں مقدار یعنی کسی چیز کو پیمائش کرنے والی اس چیز کو کہا جاتا ہے مقدار۔ کبھی وہ آلے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کچھ کسی اور شکل میں ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقادیر، ٹھیک ہے۔ وہی عبارہ عن ثلاثۃ امور، مقادیر یہ تو عمومی ہے لیکن یہ عبارت ہے کس سے؟ 3 چیزوں سے۔ مقادیر 3 چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز المساحات ہے۔ مساحات یعنی پیمائش کرنا۔ مساحت کا پہلے بھی ہم نے بیان کیا، پیمائش کا مطلب ہوتا ہے وہ آلہ جس کے ذریعے سے زمین کی پیمائش کرتے ہیں، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مساحات، ٹھیک ہے۔ اس کو جریب بھی کہتے ہیں، مساحات بھی کہتے ہیں۔ کا جریب نخلاً، جیسے جریب نخلاً، یہ نخل کا ایک جریب ہے۔ مثلاً عربوں میں پہلے نخل ہوتے تھے، کھجوروں کے درخت ہوتے تھے، تو وہ اس کے ایک جریب کے حساب سے بیچتے تھے۔ پیمائش وہ ایک خاص مقدار ہوتے تھے، جس طرح ہم کبھی پیر کے ذریعے سے، کبھی ہاتھ کے ذریعے سے، کبھی قدم کے ذریعے سے پتہ کرتے کہ یہ فلان اتنے جریب ہے۔ تو ایک جریب زمین کو پیمائش کرنے والی ایک آلہ ہے۔ اب کسی نے کہا جریب، یہ زمین ایک جریب ہے، ہمیں اشتباہ ہو گیا کہ کس جریب کی بات کر رہے ہیں۔ بعد میں وہ کہتے ہیں جریب نخلاً، یعنی کھجوروں کا ایک جریب ہے۔ تو یہاں نخلاً کیا ہے؟ تمیز ہے۔ اس مفرد کی کیا کر رہے ہیں؟ تفسیر کر رہے ہیں کہ جو جریب ہے۔ اب جریب نخلاً کہنے سے وہ ممیز جو کہ جریب تھا وہ پہلے ہمیں مبہم تھا، اب نخلاً کہنے سے پتہ چلا یہ جریب جو ہے کھجوروں کا ہے، اس کی پیمائش کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات۔ دوسری چیز مقادیر میں سے والکیل ہے۔ کیل یعنی وہی مقادیر میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مساحات ہے، دوسرا کیل ہے۔ کیل ناپ کے دینے والی چیزیں، ٹھیک ہے، ناپ کے۔ کساء تمرن، جیسے ایک سا، کس کا؟ کھجور کا۔ اب یہاں پہ سا جو ہے جیسے فقہی کتب میں آئے ہیں کہ وہ ایک خاص کٹوری کا نام ہے، آلے کا نام ہے، جس میں 2.5 سے 3 کلو تک تقریباً ایک ہی کٹوری کے اندر آتے۔ پرانے زمانے میں عام تھے، چونکہ وہاں پہ یہ جدید دور نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سا ہے۔ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کس چیز کی سا ہے، مشتبہ تھے، ابہام تھے ان کے لیے۔ پھر اس نے کہا کساء تمرن، یعنی یہ کھجور کا جو ہے ایک سا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ تمرن جو ہے تمیز ہے، جو اس مفرد سا کی کیا کر رہے ہیں؟ تفسیر کر رہے ہیں۔ تو ایک مقادیر میں سے مساحات، دوسری قسم کیل، والوزنی ماپنے والی چیزیں ہیں۔ ایک ناپنے جو یہ والی چیزیں ہیں ماپنے، دوسرے جیسے وزن کر کے دینے والی چیزیں۔ کم منوین عسلاً، جیسے کسی نے کہا 2 من ہے، لوگ اشتباہ میں پڑ گئے کس 2 من کی بات کر رہے ہیں، بعد میں کہا عسلاً یعنی شہد کی 2 من۔ تو اب یہاں جو ہے عسلاً تمیز کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں کس کی؟ منوین کی۔ من ویسے یہ ہر علاقے میں الگ ہے، یہ عرب ممالک میں بعض فارس، خلیج فارس اور کنٹریز وغیرہ میں یہ من جو ہے اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 کلو، 40 کلو نہیں وہ 4 کلو ہوتے ہیں۔ یہاں عراق میں جو ہے نا، عراق میں یہ جو خلیج فارس ہے، خلیج عرب ہے، حتی تک کہ ایران میں من جو ہے اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 کلو۔ ہگتین بولتے ہیں نا وہ لوگ، ہگا وہی من، ایک من کو کہتے ہیں، یہ اس میں 4 کلو ہوتے ہیں، ہمارے من میں 40 کلو ہوتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو من جو ہے اس کے حساب سے کبھی جو ہے نا ہر ملک کے اعتبار سے الگ ہو سکتے ہیں، وہی ہمارے 40 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقادیر کی قسم ہے، مساحات بھی، کیل بھی، وزن بھی، ٹھیک ہے۔ یہ مفرد کی تفسیر کرنے والی پہلی قسم تھی، یعنی
कहना ये चाहते हैं, ये बात समझने वाली बात है। जब बाद में जो है ना, जब आप दोबारा रीडिंग करेंगे ना इसको तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी ज़हन में रखें। देखो तमीज़ तफसीर करते हैं मुफरद की। अब मुफरद जो है इन चंद मकामात के बाद जो है वो मुफरद की तफसीर करते हैं। उनमें से पहली चीज़ जिसके बाद तमीज़ तफसीर करते हैं वो मकादीर के बाद है। अब मकादीर के अंदर तीन चीज़ें हैं, कैल व वज़न, ये मसाहत, ये तीन चीज़ें। अब दूसरी चीज़ वहाँ भी दूसरी चीज़, दूसरा मकाम जहाँ पर तमीज़ जो है मुफरद की फिर से तफसीर कर रहे होते, लेकिन कब? अल आदत, आदत के बाद। देखो आदत जो है मुबहम होते हैं, अब तमीज़ आकर उस आदत की क्या कर रहे होते हैं? तफसीर कर रहे होते हैं। देखो पहले कहा मकादीर, उसके अंदर तीन चीज़ें, फिर कहा कि आदत, इसके बाद भी तमीज़ जो है उस मुफरद की क्या कर रहे होते हैं? तफसीर कर रहे होते हैं। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जब घुस जाते हैं ना, गौर करने लगे तो आपको ये चीज़ें इश्तिबाह में पड़ सकते हैं, फिर वो असल सवाल रह जाएगा, वो जवाब आपके पास आएगा, फिर मसला बन जाएंगे, इश्तिबाह हो सकते हैं। इसलिए अल आदत का अहद अशरा दिरहमन, किसी ने कहा वो अहद अशर की तरह है। अब 11 कहा, अब किस चीज़ की बात हो रही है? अहद अशर किस चीज़ के हवाले से? बाद में उसने कहा दिरहमन, किसके बात हो रही थी? दिरहम की। यानी दिरहम और दीनार में क्या फ़र्क है? दिरहम चांदी के होते हैं, दीनार सोने के होते हैं, ये फ़र्क है। ठीक है, ये भी ज़हन में रखें क्योंकि ये आपको बाद में काम आएगा, ये बहुत ज़्यादा अहादीस वगैरह में भी। तो अहद अशरा दिरहमन यानी 11 दिरहम है। तो ये दिरहमन उस अहद अशर अदद की क्या कर रहे हैं? तफसीर कर रहे हैं। ठीक है। वक़ौलु वमिनहु क़ौलुहु ताला, इसी में से है क़ौले सुब्हानहु व ताला। क्या है उसमें? इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन, मैंने 11 सितारे देखे। अब ये जो है कौकबन जो है अहद अशर की क्या कर रहे हैं? तफसीर कर रहे हैं। जिस तरह अहद अशर दिरहमन में दिरहमन अहद अशर की तफसीर कर रहे हैं, अहद अशर कौकबन में कौकबन उस अहद अशर की तफसीर कर रहे हैं। तमीज़ है कौकबन। वहा कज़ा हुक्मुल आदात, इसी तरह बाकी आदात का भी हुक्म यही है, लेकिन एराब के हवाले से फ़र्क पड़ेगा, वो मुसन्निफ़ यहाँ पर बयान कर रहे हैं। वहा कज़ा यही होगा कौकबन दिरहमन की तरह। कौकबन और दिरहमन यहाँ तमीज़ है तो किस अनवान से है? मुफरद भी है और मंसूब भी है। इसका जो अरब क्या है? मुफरद और मंसूब, ये ज़हन में रखें। वहाँ कज़ा हुक्मुल आदात, इसी तरह आदात का हुक्म, आदात का हुक्म यही है। मिनल अहद अशर मिनल अहद अशरा इला 99, कहाँ तक? 99 तक। 99 यानी 11 से लेकर 99 तक की जो आदाद है उसका जो एराब होगा वो क्या होगा? मुफरद और मंसूब होगा। यानी आप इसना अशरा कौकबन, सलासत अशर कौकबन इला 99 नाजतन मसलन, ये अभी आएंगे। तो ये आप जो है मुफरद और मंसूब पढ़ेंगे। ठीक है। वक़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने इरशाद फरमाया, जैसे इन्ना हाज़ा आखी लहू, इन्ना हाज़ा आखी, ये जो मेरा भाई है, लहू उसके लिए हैं क्या? 99 नाजतन, 99 दुम्बे है उसके लिए। अब यहाँ नाजतन क्या है? मुफरद है, मंसूब है, 99 जो अदद है उसके लिए। तो यहाँ पे 2 मिसालें दी है, 11 के लिए मुफरद मंसूब होने की मिसाल दी, फिर आखिरी जो अदद था 99 जो कि आखिरी अदद है उसके लिए भी मुफरद मंसूब होने की मिसाल पेश की है। ठीक है। तो आपने ये ज़हन में रखना है, ये जो अदद है ना, ये आपको अक्सर हमारे यहाँ पे इश्तिबाह कहाँ पर होते हैं? अरबी बोलने नहीं आते, अक्सर लड़कों को आते भी अरबी, लेकिन वो बोलने में थोड़ा मुश्किलात होते हैं, चूँकि अरबी लोग हैं तो वो फ़ौरन बोलते हैं और उनके लिए पता होता है क्या कहाँ मजरूर पढ़ना है, कहाँ जमा पढ़ना है, कहाँ मंसूब पढ़ना है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल होता है। तो 3 से लेकर देखो अदद 1 से लेकर 3 तक क्या है? 1 से लेकर 3 तक मुफरद अदद के हिसाब से ये अदद जो है तकसीम करेंगे। ठीक है। 3 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 3 तक और बाकी 99 से ऊपर, ये अदद के हिसाब से है। आप जो है
जमा मजरूर पढ़ेंगे किस हवाले से? जमा मजरूर पढ़ेंगे 3 तक। देखो जैसे रजुलुन, रजुलानी, रिजालुन, रिजालुन, ये जमा मजरूर है, ठीक है। आप जब भी पढ़ेंगे तो रिजाल पढ़ेंगे, क्योंकि वो जमा मजरूर पढ़ेंगे। अब यहाँ से 3 से लेकर 10 तक है, वही 3 से लेकर 10 तक वही 11 फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है, जमा मजरूर है। फिर ये जो 11 से लेकर 99 तक क्या है? मुफरद मंसूब है। अब 3 से नीचे क्या है? वही आम आदत है जो मुफरद के लिए मुफरद, तस्निया के लिए तस्निया है। तो ये जहन में रखें। 1 और 2 अलग हो गया। फिर 3 से लेकर 10 तक आप करेंगे जमा मजरूर। जब भी कोई आदत ले लेंगे, मसलन आप मेरे पास 10 आपका है 7 गायें हैं। इंदी सब आता अबकारिन, आप ये कहेंगे। अबकार क्या है? जमा मजरूर। बकरत नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो 10 से ऊपर कहेंगे। आपने 7 कहा है ना, आदत सब 7 का लिया है, तो 7 लेने से आप कहेंगे सब आता अबकारिन कहेंगे। अबकार जमा मजरूर है। इसी तरह मसलन आप कहें मेरे पास घंटी है। इंदी सित्तत अवतारिन, मेरे पास 6 घंटी है, मसलन। इस तरह फर्क कर जो भी मिसालें लेने आप इसी वज़न पे लेने, जमा भी बनाना है और उसको मजरूर भी करना है, इस तरह, ठीक है, रिजाल की तरह। और बाकी जो है मुफरद और मंसूब बनाना है, ठीक है। बाकी और भी वो कम फिर खबरिया आते हैं, कम है इस्तिफामिया आते हैं, उसकी अलग है, वो भी बयान करेंगे इसमें तकरीबन, ठीक है। वफिल हदीस में भी है इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईना अस्माअन, अल्लाह के लिए कितने हैं? कुल 99 अस्मा है। अब यहाँ अस्मा तमीज़ है और इन्ना लिल्लाही यहाँ पे इन्ना लिल्लाही यकीनन अल्लाह के लिए है। 9 व 90 यहाँ पे लिल्लाही जार व मजरूर ख़बर मुक़द्दम हो गया और ये 9 इसम मुअख़्ख़र हो गया उसका, ठीक है, इन्ना के लिए। व 9 व 90 अस्माअन है या उन है? इसमन है। हाँ, इसमन होगा तो मुफरद मंसूब होगा। मैं यही सोच रहा था, क्योंकि इसका जो एराब आना है मुफरद होना है, मंसूब होना है। अब अस्मा जो है जमा है, मेरे इसमें अस्मा लिखा हुआ है, इसमन, ठीक है, इसमन। तो ये इसमन से मुराद क्या हो गया? मुफरद है, तमीज़ है और मंसूब है, ठीक है। मैं वही नीचे देख रहा था, ये आसमान कैसे हो गया, ठीक है। तो ये कुरान से मिसाल दी है, 2 मिसालें, एक 99 की और दूसरा जो है दूसरा भी 99 के लिए, लेकिन अल्लाह के लिए, जो कि 99 अस्मा है। वफ़ुहिमा, अब यहाँ से एक और चीज़ को बयान करते हैं। वफ़ुहिमा मिन अत्फ़ी, मुसन्निफ़ कहते हैं मैंने अतुफ़ किया था, कहाँ पर? मतन में, फिल मुक़द्दिमती, मुक़द्दिमे में मैंने अतुफ़ किया था। इस अतुफ़ से लोग समझते हैं, कौन सा अतुफ़? अल अदद अलल मक़ादीरी, मैंने अदद को किस पर अतुफ़ किया था? मक़ादीर पर। यानी मुसन्निफ़ ने कहा था ये जो अगर यहाँ पर पढ़े ना वो मतन में, तो उसने कहाँ पढ़ा है इसने? हमने मतन अभी तक शुरू नहीं किया, इसलिए यानी बाइबारत दीगर आप यूँ कहे, बाद में हम जब पढ़ेंगे ना, हाँ ये मिल गया। ये देखो, वो अक्सर वक़ूअही बअदल मक़ादीर, मतन के इब्तिदा में बअदल मक़ादीर, फिर मिसाल देने के बाद कहा है वल अददी, अदद को किस पर आतुफ़ किया है? उसी मक़ादीर पर। इससे लोग ये समझते हैं अन्नहु लैसा मिन जुमलतिहा, अन्नहु की ज़मीर क्या है? अदद, यानी अदद नहीं है, किस में से? लैसा मिन जुमलतिहा, मक़ादीर के जुमले में से नहीं है, यानी अदद मक़ादीर में से नहीं है। वह हुआ क़ौल अक्सर मुहक़्क़िक़ीन, और यही अक्सर मुहक़्क़िक़ीन की राय भी है। अदद और मक़ादीर, मिक़दार भी क्या कहा हमने अभी? मिक़दार भी चीज़ को बयान करना है, अदद भी वही है, लेकिन फ़र्क है अदद और मिक़दार में। ये अरबी है तो उस हिसाब से फ़र्क है। मक़ादीर में ये होते हैं, उसमें ये चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते जिस आलत से। मसलन आप कहें ना कि मेरे पास 2 मन असल है, इंदी मनवेन असलन, आप ये कहें तो ये मनवेन में 2 मन कहे तो आपको असल वो जो शहद है वो आपके जहन में आएगा,
لیکن کس چیز کے اندر ہے اس آلہ جو اس اصل کو رکھا ہوا ہے، بوتل ہے، شیشی ہے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ آپ کی ذہن اس کی طرف جائیں گے نہیں۔ مثلا ابھی آپ چینی لینے جائیں گے تو ظاہر سی بات وہ اللاگے میں دیں گے، پلاسٹک میں دیں گے، شاپر میں، لیکن آپ کی نظر شاپر پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہماری ذہن ہی نہیں ہوتے، چونکہ ہماری مراد جو ہے چینی ہے، چینی 1 کلو، مقدار 1 کلو چینی لینا ہے، اب ہم اس حالت کو نہیں دیکھتے۔ لیکن عادت میں کیا ہوتے ہیں، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا ابھی آپ انڈے لینے جاتے ہیں، مثلا الف کی 5 جا رہے ہیں، تو آپ جب انڈے لیں گے تو مقدار کے حساب سے، وہ جو عادت کے حساب سے لیں گے، تو آپ کے جو ذہن کہاں پر ہوں گے پھر؟ 5 پر ہوں گے۔ اگر وہ 4 دیں گے آپ کہیں گے بھائی 5 آنے تھے، آپ نے 4 کیوں دیا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں نا۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ فرق ہے عادت اور مقدار میں۔ آپ نے کہنا مقدار میں اس آلت کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی ہے، لیکن عادت میں کیا ہوتے ہیں، اس چیز کی پوری ہیکل پر ہماری نظر ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ لأن المراد بالمقادیر، مقادیر سے مراد ما لم ترد حقیقتہ، اس چیز کی طرف رد نہیں ہوتا ہماری ذہن ہے جو اس کی حقیقت ہے، یعنی جو آلت ہے، جو چیزیں ہیں، بل مقدار ہو، بلکہ اس کی مقدار کی طرف ہماری ذہن ہوتی ہے۔ حتی انہ تصح اضافۃ المقدار علیہ، حتی اگر یہ بھی کہے کہ مقدار کا اس میں ہونا صحیح ہے، تب بھی آپ یہ مثلا کبھی کبھی آپ 10 کلو چینی لینے جاتے ہیں تو وہ پوری بوری کو اس کے ساتھ اٹھا کے دیتے ہیں، تو بوری تو کم از کم 1 پاؤ تو کم از کم ہوں گے نا، لیکن آپ کی پھر بھی ادھر نظر نہیں ہوتی ہے۔ چلو 10 کلو چینی کے بدلے میں یہ 1 بوری آ رہا ہے تو وہ پاؤ بھی بنے، تب پاؤ تو کم از کم بنتے ہیں، لیکن ہماری نظر اس پر نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں بھائی 10 کلو چینی بوری میں دی اس میں، بس یہ ذہن ہوتا ہے۔ اس طرح اضافۃ المقدار الیہ ولیس العدد کذالک، لیکن عدد میں ایسا نہیں ہے۔ الا تری، کیا آپ نہیں دیکھتے، انک تقول، آپ کہتے ہیں عندی مقدار رطل، میرے پاس ایک مقدار میں ہے رطل، زیتن، پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک مقدار رطل ہے جو کہ زیت کا ہے، تو آپ کی جو نظر ہے اس زیت کی طرف ہوں گے رطل، لیکن وہ اس آلے کی طرف نہیں ہوں گے جو جس میں زیت ہوتا ہے۔ ولا تقول، اور آپ یہ بھی نہیں کہتے کسی کو عندی مقدار 20 رجلا، آپ کے پاس اگر 20 بندے تو آپ یہ نہیں کہیں گے میرے پاس 20 مقدار کے بندے ہیں، الا علی معنی آخر، مگر اس وقت آپ کہیں گے میرے پاس 20 عدد کے مقدار کے بندے ہیں، تب کہیں گے جب کسی اور معنی میں ہو۔ اور معنی کون سا ہوتا ہے؟ مجازیت میں۔ مثلا ایک آدمی جو ہے اتنا موٹا ہے، 20 بندوں کے برابر وہ طاقت رکھتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ مثلا میرے پاس مقدار 20 رجلا، 20 بندوں کے برابر ایک میرے پاس بندہ ہے، تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ ویسے میرے پاس 20 بندے ہیں کہنے کے لیے آپ جو ہے یہ نہیں کہیں گے کہ عندی مقدار 20 رجلا، یہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مجازی معنی میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ یہاں تک ایک بات جو ہے کلیئر ہو گئی ہے۔ اب جو ہے یہاں سے کم کی جو ہے تقسیم اور حکم کم کی 2 قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ، اب اس کی توضیح ہو رہی ہے۔ وَمِن تمییز العدد، عدد کی تمییز میں سے تمییز کم استفہامیہ کی تمیز بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عدد کی تمیز میں سے کم استفہامیہ کی تمیز بھی ہے۔ وذالک، اب وہ کیسے ہوں گے آہستہ آہستہ بیان کر رہے ہیں۔ لأن کم فی العربیۃ، کم جو ہے عرب میں کنایۃ عن عدد مجہول الجنس والمقدار، کم اس چیز سے کنایہ ہے، جب آپ سے کوئی کم کے ذریعے سے سوال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہ اس کے عدد کے بارے میں علم رکھتا ہے، نہ اس کے جنس اور مقدار کے بارے میں علم رکھتے ہیں، نہ جنس کا پتہ ہے، نہ مقدار کا پتہ ہے، نہ عدد کا پتہ ہے۔ جب کچھ پتہ نہ ہو تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کم یعنی کم مقدار، کتنے مقدار میں ہے، کم عدد، کتنے عدد میں ہے، من ای جنس، یہ جنس سے سوال کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ وہی اعلیٰ ضربین، جب کسی چیز کے عدد، جنس اور مقدار کا معلوم نہ ہو تو وہ سوال کرتے ہیں، لیکن سوال کرنے کا طریقہ وہ کم کے ذریعے سے کریں گے، اور کم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ استفہامیۃ،
پہلی قسم جو ہے استفہامیہ ہے، بمعنی اس کا معنی یہ ہے ایو عدد، یعنی اس کی عدد کتنی ہے، وَيَسْتَعْمِلُهَا مَنْ يَسْأَلْ عَنْ كَمِّيَّةِ شَيْءٍ، یہ سوال کم استفہامیہ عدد کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں جب کسی کو کسی چیز کی کمیت مقدار کا پتہ نہ ہو۔ کمیت کسے کہتے ہیں؟ مقدار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَعْمِلُهَا، یہ کم یعنی کم استفہامیہ استعمال کرتے ہیں من، وہ شخص، یسأل، جو سوال کرنا چاہتے ہیں کس سے؟ عن کمیت الشیء، کسی چیز کی کمیت کے بارے میں، مقدار کے بارے میں۔ وخبریۃ، دوسرا کیا ہے؟ کم خبریہ ہے، واو عطف ہے، وہی علی ضربین، استفہامیۃ و خبریۃ، کم استفہامیہ اور کم خبری، و خبریۃ پڑھے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں۔ بمعنی خبریہ کا مطلب یہ ہے کثیر، یعنی کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَعْمِلُهَا، یہ کم خبریہ استعمال کرتے ہیں من، وہ شخص، یرید الافتخار والتکثیر، جو کسی پر فخر کرنا چاہتے ہو یا اپنے تکثیریت کو، مال کے زیادہ ہونے کو بیان کرنا، چونکہ وہ خبر دے رہا ہوتا ہے میرے پاس یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے، اتنی چیزیں ہیں، مال دولت ہے، سونے چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے وغیرہ، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، یہ مراد ہے۔ وَتَمْيِيزُ الْاِسْتِفْهَامِيَّةِ مَنْصُوبٌ مُفْرَد، اب یہاں سے اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مفرد اور منصوب ہوتے ہیں۔ تقول، جیسے آپ پڑھتے ہیں کم عبدن ملکتا، آپ کتنے بندوں کو ملکیت میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کتنے بندے ہیں، آپ کی ملکیت میں کتنے بندے ہیں، کتنے غلام ہیں، کم، ٹھیک ہے۔ کم عبدن ملکتا، آپ نے کتنے بندوں کو اپنے ملکیت میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کم استفہامیہ سے ہے۔ وہ کم دارن بنیتا، آپ نے کتنے گھر بنائے ہیں، تو یہ مقدار کو پوچھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اس کا جو اعراب ہے وہ کیا آیا؟ مفرد اور منصوب۔ عبدن مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے، دارن مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے، جو کہ اس کا تمیز ہے۔ عبدن تمیز ہے، ملکتا بھی ہے، فاعل کم مقدم، خبر مقدم ہوگا پھر یہ۔ اسی طرح کم دارن بنیتا میں بھی۔ وَتَمْيِيزُ الْخَبَرِيَّةِ، لیکن کم خبریہ کی جو تمیز ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ دائماً، وہ ہمیشہ میں سے کیا ہوتے ہیں؟ مجرور ہوتے ہیں۔ ثم، لیکن ہمیشہ محفوظ مجرور ہوتے ہیں، لیکن ثم تارتاً یکون مجموعاً کتمیز العشرہ، کبھی یہ جمع ہوتے ہیں عشرہ کی تمیز کے ساتھ، عشرہ کی تمیز کی طرح، مجموعاً جمع ہوتا ہے عشرہ کی تمیز کی طرف، ہم آدونہ جو عشرہ سے نیچے ہے، یعنی جمع مجرور بھی ہوتے ہیں۔ یہ مطلب یہ آپ کو یہ نہیں کہا کہ مجرور مفرد ہوتے ہیں، جمع مجرور ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا، لیکن اس نے یوں کہا ہے، دیکھو ثم تارتاً یکون، یعنی خبریہ کی تمیز جو ہے ہوتے ہیں مجموعاً، جمع ہوتے ہیں کا تمیز العشرہ، جیسے کہ عشرہ کی تمیز جمع ہوتے ہیں، فما دونہ جو عشرہ سے نیچے، عشرہ سے نیچے 3 تک کی عدد کے جو تمیز وہ کیا ہے؟ جمع مجرور۔ یہ دون کہتے ہیں، دون کے ویسے 2 معنی ہے، ٹھیک ہے، عربی میں ایک ہوتا ہے نیچے، ایک ہوتا ہے یعنی دونا جو آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کو بھی دون کہتا ہے اکثر، اور بھی معنی ہے لیکن یہ 2 عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تقول، آپ یوں پڑھیں کم عبید ملکتو، کم عبید ملکتو، میں کتنے بندوں پر ملکیت رکھتا ہوں، تو یہ کم جو ہے مضاف ہے، عبیدین مضاف الیہ، اور یہ جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے، عبید جمع ہے، عبد کی جمع عبید ہے، ٹھیک ہے، جمع بھی ہے، مجرور ہے، اور ملکتو فعل و فاعل۔ کما تقول، جیسے آپ پڑھتے ہیں عشرۃ اعبد ملک، میں نے 10 بندوں کو اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، خبر دے رہے ہیں نا، کم خبریہ، تو یہاں عشرۃ اعبدین، اعبدین کیا ہے؟ جمع مجرور ہے۔ وثلاثۃ اعبد ملکتو، میں نے 3 بندوں کو غلام بنائے ہوئے، ملکیت میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہاں ثلاثۃ مفعول مقدم، اعبد جمع مجرور، ملکتو فعل فاعل، ٹھیک ہے۔
वतारतन, अब देखो कम इस्तिफामिया में कहा कि उसकी जो तमीज़ है वो मुफरद मंसूब होते हैं, कम खबरिया में आकर कहा कि वो मजरूर होते हैं। पहली बात यह कि मजरूर होते हैं, लेकिन वो कभी जो है 9 से लेकर 10 से लेकर 3 के अदद की तरह जमा मजरूर भी होते हैं। और आखिर में तीसरा इराब खुद फिर कम खबरिया की बात कर रहे हैं। वतारतन यकूना मुफरदन, लेकिन कभी कभी उसकी तमीज़ क्या होते हैं, मुफरद होते हैं। क्या तमीज़ मियाँ फमा फ़ौक़हा, जैसे कि मियाँ और फमा फ़ौक़ मियाँ की जो तमीज़ है वो क्या होते हैं, मुफरद मंसूब होते हैं। ठीक है, फमा फ़ौक़हा यानी मियाँ से ऊपर। तक़ूल, आप पढ़ें कम अब्दिन मलकता, कम अब्दिन मलकता, यहाँ मुफरद है। ठीक है, कमा तक़ूल मियत अब्दिन मलकता, मियत अब्दिन मलकता मुफरद है, मंसूब है। ठीक है, व अल्फ़ अब्दिन मलकता, 1000 बंदूक की बंदूक को मैंने मिल्कियत में रखा हुआ है। व यजूज़ु, और जायज़ है ख़फ़्ज़ु तमीज़ कमिल इस्तिफ़ामिया, कम इस्तिफ़ामिया की जो तमीज़ है वो मजरूर होंगे या नहीं होंगे। कोई सवाल करे तो आप कहेंगे मजरूर हो सकते हैं। ठीक है, व यजूज़, जायज़ है, मुमकिन है, ख़फ़्ज़ु तमीज़, ये यजूज़ का अक्सर मतलब जो है ना, अक्सर अरबी में यजूज़ का माना मुमकिन भी होता है। ठीक है, ये इस्तिबा नहीं करना, ये एक ही माना में। व यजूज़ जायज़ है, व यजूज़ मुमकिन है। ठीक है, मुमकिन। व यजूज़ ख़फ़्ज़ु तमीज़ कमिल इस्तिफ़ामिया, कम इस्तिफ़ामिया की तमीज़ के लिए जर देना जायज़ है कब, मजरूर होना जायज़ है कब, इज़ा दखल अलैहा हर्फ़ जर्रिन, जब उसका में इस्तिफ़ामिया पर हर्फ़ जर दाखिल हो। तक़ूल, आप पढ़ें बिकम दिरहमिन, बिकम दिरहमिन इश्तरैता, आपने कितने दिरहम में इसको ख़रीदा है। तो दिरहमिन मुज़ाफ़, इश्तरैता फ़ेलो फ़ाइल। ठीक है, तो यहाँ बिकम में बा हर्फ़ जर की वजह से कम क्या हुआ है, मजरूर हुआ है। लेकिन ज़ाहिर क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ चूँकि कम मबनी अला सुकून वाली मिसालों में शुमार होते हैं। मबनी अला सुकून है, मबनी है। ठीक है, मबनी अलामत को ज़ाहिर नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इख्तिलाफ भी है। देखो यहाँ पे इख्तिलाफ भी है। वल खाफिज़ु लहू, इस जो कम को जर देने वाला खाफिज़ हर्फ जर कौन है, मिन मुज़मरतन, मिन है जो कि क्या है, ज़मीर में है। किसके नज़दीक है ये, मुसन्निफ़ के नज़दीक। मुसन्निफ़ के नज़दीक कम को जर देने वाला कौन है, हाँ मिन है, हर्फ जर है। लल इज़ाफ़ा, इज़ाफ़ा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे इज़ाफ़त की वजह से कम मजरूर हुआ है कहते हैं। क्यों, क्योंकि कम अपनी अला सुकून में से है। खिलाफ़ ज़ज्जाज, ज़ज्जाज के ख़िलाफ़। ज़ज्जाज नाहवी क्या कहते हैं, यहाँ हर्फ जर मिन की वजह से कम मजरूर नहीं हुआ बल्कि इज़ाफ़त की वजह से। बिकम दिरहमिन इश्तरैता, ये दूसरी जो किस्म थी। ये मिन के वो कम के बारे में कह रहे हैं या दिरहमिन के बारे में कह रहे हैं मजरूर? नहीं, वो कम के बारे में ना, हाँ कम के बारे में, कम के बारे में। यहाँ पर कहा ना, नहीं दिरहमिन के बारे में है, दिरहमिन के बारे में, अहसन दिरहमिन के बारे में हम इश्तिबाह कर रहे थे, दिरहमिन के बारे में है। तो दिरहमिन के हाँ, फिर तो आप ये मबनी अला सुकून वाली मिसाल खारिज कर सकते हैं। वो क्यों हो सकते हैं, चूँकि यहाँ पे ख़ुद तौज़ी वजाहत के साथ बयान किए रहे, हम जहन में नहीं रखे। देखो व यजूज़ु ख़फ़्ज़ु तमीज़ कमिल इस्तिफ़ामिया, कम इस्तिफ़ामिया की तमीज़ का मजरूर होना है किसके ज़रिए से, हर्फ जर के ज़रिए से। लेकिन ये किन के नज़दीक है, मुसन्निफ़ के नज़दीक है, लेकिन ज़ज्जाज के नज़दीक ऐसा नहीं है। वाज़ेह है, लेकिन बारह बोलने में इश्तिबाह की है फ़कत। बिकम दिरहमिन इश्तरैता, दिरहमिन यानी तमीज़ का मजरूर होना है, ये ज़हन में रखें। हम पहले भी तमीज़ की बात कर रहे थे, दरमियान में वो पता नहीं, यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तीसरी चीज़ असालिस मिन मवानी तमीज़ मुफरद, यानी ये यहाँ पे कहा था ना, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो तमीज़ मुफरद की तफसीर कर रहे होते हैं इन मकामात के बाद। पहला कहा कि मकादीर के बाद, दूसरा कहा अदद के बाद, तीसरा कहा यानी मुफरद की तमीज़ कर रहे होते हैं लेकिन वो अपने मुमासिल होने की वजह से। किस वजह से, अपने मुमासिल की वजह, यानी किसी मुफरद तमीज़ किसी मुफरद की तफसीर कर रहे होते हैं, इसलिए तफसीर कर रहे होते हैं चूँकि वो उसका क्या है,
मुमय्यज़ है, अपने मुमासिल है, इस वजह से। ठीक है, हाँ ये टाइम है अभी, ये पढ़ सकते हैं। मिन मवानिन, उन मकामात में से एक क्या है, तमीज़ुल मुफ़रद, मुफ़रद की तमीज़ करना है, माँ उस चीज़ को दल अला मुमासलतिन, जो अपने मुमासिल होने पर दलालत करते हैं, उसकी तफसीर करते हैं। यानी तमीज़ अगर तफसीर कर रहे तो उस चीज़ की तफसीर कर रहे थे, उस मुफ़रद की तफसीर कर रहे होते हैं जो अपने मुमासिल हैं। मुमासिल का मतलब क्या होते हैं, देखने में एक है, हकीकत में अलग है। ये अल्फाज जो है ना, बहुत सारे अल्फाज हम देख रहे होते हैं ना अरबी में, इसीलिए अरबी में बहुत इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं तरादुफ मौजूद है, बाज़ कहते हैं तरादुफ नहीं है, अरबी में तरादुफ होते ही नहीं है। ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है, तो आप हर लफ्ज़ के जो है माना देखते रहें। यानी मुमासिल यानी देखने में एक है लेकिन हकीकत उनकी क्या है, अलग है, उसके अलग अलग मानी हो सकते हैं। ठीक है, मिसल जो अरबी में हैकल का एक होना है, यानी ज़ाहिरी तौर पर ये मुराद है। ना हु क़ौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान, वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, अगर वो हमारे पास लाएं इस जैसा कोई मदद, कोई और चीज़ जो इसकी तरह हो, मदद लेकर आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिमिस्लिही और मदद जो है दोनों क्या है, एक ही मुफरद एक है लेकिन अपने मुमासिल हैं। बिमिस्लिही मददा, मिसल यानी अपने मिसाल, मिसल होने में, मददा उसके अपने हम यानी हम शक्ल होने में, ताकत रखने में, उसके अपने हम नज़ीर होने में, ये है। ठीक है, यानी हम उसको ऐसे ले आएंगे जिस तरह हम है उसी तरह उसकी और एक ताकत का इजाफा उसमें करेंगे। यानी हम अपने, कभी कहते हैं ना किसी दुश्मन को, भाई आप मुझे अकेला मत समझो, मैं अपने जैसे अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं, ये कहते हैं ना, ये इनमें से वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, यानी आप ये मत सोचें कि मैं एक ही मेरे पास ताकत है, नहीं, मेरे साथ और भी लोग हैं जो मेरे साथ शरीक है। ठीक है, मदद जो है ना अरबी में अगर लुग़त की किताबों में देखा जाए तो उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें मसाहत एक हो, यानी पैमाइश जब हम करते हैं ना, तो मसलन या मुरब्बा होने में, या मुस्ततील होने में, या मुसल्लस होने में, या दायरे में, ये बराबर हो तो उसको मदद के साथ भी नाम दिया जाता है। तो ये मददन क्या है, तमीज़ है, ये तमीज़ है। और ये बिमिस्लिही की क्या कर रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं। क्यों तफसीर कर रहे हैं, चूँकि अपनी हम मिसल है। वक़ौलुहुम, और इनका कौल, इन्ना लना अमसालहा इबिलन, हमारे लिए मिसाल है उनके, हम इन्ना लना हमारे लिए है, अमसालहा उनकी मिसालें हमारे साथ है, इबिलन इबिल की तरह। ठीक है, ये यानी वो यूँ कहना चाहते हैं, उनकी मिसाल हमारे लिए ऐसे जैसे ऊँट की तरह है, हमारे लिए ऊँट है। ये बाकी सियाक़ व सिबाक़ में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्यों कहा है। ठीक है, वैसे हमें ज़ाहिरन जो तर्जुमा होता है वही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लना जो है जार व मजरूर ख़बर है, मुक़द्दम हो गया। अमसालहा ये इसमें मुफ़रद है, ठीक है, मारिफा है, और ये इसमें मुफ़रद है। और इबिलन जो है उसकी अमसाल की क्या कर रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं, जो कि अपने हम्मिसिल होने की वजह से। ठीक है, यानी दूसरा कहना चाहते हैं उनके लिए, हम उनके जो मिसाल है, उनके पास जो जितनी चीज़ें हैं वो हमारे पास भी मौजूद है, जो इबिल वगैरह या कोई और चीज़ है, यानी हम उनके साथ मिसल है। किस चीज़ में मिसल है, मतलब इबिल में मिसल है। वो भी ऊँट रखते हैं, हम भी ऊँट रखते हैं, ये इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, बहरहाल ये इबिल जो है तफसीर है किसके लिए, ऊँट, यानी ये तफसीर है अमसालहा के लिए। ठीक है, ये ख़त्म हो गई। अर्राबी, चौथी चीज़, यानी तमीज़ मुफ़रद की तफसीर करेंगे उन मकामात में से एक जो है मादल अला मुगायरतिन, जब वो किसी मुगायरत पर दलालत करे, अपने गैर के माना पर क्या करें, दलालत करे। नहू जैसे कि इन्ना लना गैरहा इबिलन, उनके पास जो इबिल है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो इबिल है वो उसका गैर है। मुसन्निफ ने आसान से मिसाल बनाया, देखो पहले उसको कुछ और बना, अभी गैर को इजाफा करके कुछ और बना दिया। देखो औशा,
वमा अशबह ज़ालिक, इनमें यहाँ पर जो है इबिलन जो है गैरहा के लिए क्या है तफसीर कर रहे हैं, जो कि इसको मुगायरत रखते हैं, मुफरद मंसूब है। इन सब में क्या है मुफरद मंसूब है तमीज़। वक़द अशरतु, हमने इशारा किया बिक़ौली, यानी वो मतन की बात कर रहे हैं। वो अक्सर वक़ूअहु, ये कहकर, यानी वह अक्सर वक़ूअहु कहकर मतन में हमने ये इशारा किया कि वह अक्सर वक़ूअ कहकर इला अन्न तमीज़ुल मुफ़रद ला यख्तस्सु बिलवक़ूअ बअदल मक़ादीर, मुफ़रद की जो तमीज़ है ये मुख्तस नहीं है, इसका वाक़ई होना मक़ादीर के बाद, ये मुख्तस नहीं है, बल्कि कभी मुग़ायरत के भी बाद आ सकते हैं, कभी आदत के भी बाद आ सकते हैं, कभी मुफ़रद के बाद भी आ सकते हैं, कभी वो मक़ादीर के बाद भी आ सकते हैं। ठीक है, ये कहा है। तमीज़ मुफ़स्सिरुन ली निस्बतिन, अब ये तमीज़ मुफ़रद ख़त्म हो गई है। ठीक है, किसी मुफ़रद की तमीज़ तफसीर कर रहा था वो ख़त्म हो गया, उस मुफ़रद के इबहाम को ख़त्म करने वाली जो बात है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से दूसरी किस्म शुरू हो गए, वो ज़रबैन का था ना, उसमें से तमीज़ नुआन का था। नुआन एक तमीज़ मुफ़रद है, एक तमीज़ निस्बत है। निस्बत वाली भी बात अभी चल रही है। तमीज़ुन मुफ़स्सिरुन लिनिस्बतिन व मुफ़स्सिरुन निस्बा अला क़िस्मैन, जो निस्बत की तफसीर कर रहे थे उसकी दो किस्में हैं, मुहव्वलन व गैर मुहव्वलिन। एक मुहव्वल है, एक गैर मुहव्वल है। मुहव्वल का मतलब होता है तब्दील शुदा, गैर मुहव्वल का मुराद है तब्दील ना हुआ हो, गैर तब्दील शुदा। ठीक है, मुहव्वल गैर मुहव्वल। ठीक है, इसीलिए वो अरब मुहव्वल यानी तब्दील करना। मुहव्वला, ये जो ट्रांसफार्मर को मुहव्वला क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बिजली आगे देते तहवील करते रहते एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए उसको मुहव्वला से ताबीर करते हैं। ठीक है, फल मुहव्वलु अला सलासत अक़साम, देखो बहुत सारे मक़सम बना रहे हैं। फिर मुहव्वल की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। ठीक है, मुहव्वलुन अनिल फ़ाइल, कभी फ़ाइल को तहवील में ले रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, कभी मफ़ऊल को तब्दील कर रहे हैं, कभी ना फ़ाइल ना मफ़ऊल, इस तरह। ठीक है, मुहव्वलुन अनिल फ़ाइल, फ़ाइल के मुहव्वल होने की मिसाल जैसे नहवु वश्तअल अर्रअसु शैबा, वश्तअल अर्रअसु, उसके बाल हो गए शैबन, यानी वश्तअल अर्रअसु शैबन, बूढ़ा हो गए, उसके बाल सफ़ेद हो गए यानी बूढ़ा हो गए, ये मुराद है। ठीक है, सफ़ेद हो जाना सर के बाल का। असलुहु, इसका असल क्या है, इश्तअल शैबु रअस, उसके बालों का सफ़ेद हो जाना, बूढ़ा हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे फ़जअल अल मुज़ाफ़ुन इलैहि फ़ाइलन, यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैहि को क्या बनाया है, फ़ाइल, यानी इश्तअल शैबु शैबुर रअसी वश्तअल अर्रअसु, यहाँ रअस क्या था, फ़ाइल था ना, जो कि मुज़ाफ़ इलैहि था, उसको ही फ़ाइल बना दिया है, वश्तअल अर्रअसु शैबन। ये मुहव्वल फ़ाइल, यानी फ़ाइल को मुहव्वल अनिल फ़ाइल की जो मिसाल है वो बयान किया है। ठीक है, इश्तअल फ़ेल, अश्शैबु अर्रअस मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, उसको फ़ाइल बनाया है। ठीक है, फ़जअल अल मुज़ाफ़ु मुज़ाफ़ुन इलैहि, फ़जअल मुज़ाफ़ुन इलैहि, मुज़ाफ़ इलैहि कौन है, अर्रअस है यहाँ पर। ठीक है, मुज़ाफ़ इलैहि रअस है। इश्तअल फ़ेल मुज़ाफ़, फिर अर्रअस मुज़ाफ़ इलैहि, शैबन उसके लिए क्या है, तमीज़ है। ठीक है, ये मुहव्वल अनिल फ़ाइल की मिसाल है। वल मुज़ाफ़ु तमीज़न, वल मुज़ाफ़ु तमीज़न, ये उसी में है, यानी मुज़ाफ़ तमीज़ है। मुज़ाफ़ कौन है, ये इश्तअल मुज़ाफ़, अर्रअसु इश्तअल फ़ेल, अर्रअसु मुज़ाफ़, शैबन क्या है, मुज़ाफ़ुन इलैहि है। तो अर्रअस मुज़ाफ़ को फ़ाइल बनाया है और मुज़ाफ़ुन, हाँ नहीं, ये क्या कहना चाहते हो, वल मुज़ाफ़ु तमीज़न, हाँ मुज़ाफ़ तमीज़ है। फिर ये इसका मतलब है इश्तअल अर्रअसु शैबन, इसका असल क्या होना चाहिए फिर, हाँ मुज़ाफ़ इलैहि बनाया। देखो फ़जअल अल मुज़ाफ़ुन इलैहि फ़ाइलन, मुज़ाफ़ इलैहि को फ़ाइल बनाया, कौन है वो, अर्रअस है। वल मुज़ाफ़ु तमीज़न, मुज़ाफ़ को तमीज़ बनाया जो कि शैबन है, शैबन मुज़ाफ़ है।
यहाँ पे शेबन है, तमीज़ तो मुज़ाफ, वो हमने पहले भी कहा था, शेबन क्या है, मुज़ाफ है। तो ये मुहव्वल अनिल फ़ाइल की मिसाल है जो कि रास को बनाया है। तो यहाँ पे असल में इश्ताअल शैबुर रास, इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो मुज़ाफ़ इलैह कौन बनेगा, शेबन बनेगा। ये देखो शैबुर रासी, शैबा मुज़ाफ़, फिर क्या है अर्रासु मुज़ाफ़ इलैह, चूँकि इसका असल निकाल लो ना, ये इस तरह होगा। देखो ये यहाँ पे इश्तिबाह नहीं करना, हमने मेरे इश्तिबाह कहाँ पर हुआ है, मैंने असल मिसाल को देखते रहे, इसलिए मुझे इश्तिबाह में पड़ गए। आपने ये करना है, देखो फजअल मुज़ाफ़ इलैहि फ़ाइलन, मुज़ाफ़ इलैह को फ़ाइल बनाए, वो कौन है, अर्रास है। और वल मुज़ाफ़ तमीज़न, मुज़ाफ़ क्या है, तमीज़ है। अब कहाँ मुज़ाफ़ इलैह तमीज़ है, मुज़ाफ़ तमीज़ है, मुज़ाफ़ इलैह, तो आपने इश्ताअल शैबुर रास कहना है, इश्ताअल फेल हो गया, असल को निकालना है। शैबू ये क्या है, मुज़ाफ़, अर्रासी मुज़ाफ़ुन इलैह, तो ये जो है अर्रासी मुज़ाफ़ुन इलैह है, तो इसको मुहव्वल अनिल फ़ाइल बनाया, शैबू को मुज़ाफ़ है जो कि तमीज़ बनाया है। ठीक है, यानी आपने ये जो एराब लगाया हुआ ना, इसको असल जो मिसाल है वश्ताअल रासु शैबन में उधर कन्वर्ट नहीं करना, आपने ये कहना है इश्ताअल शैबुर रास, इसकी तफसीर कर रहे हैं आप असल को, तो फिर पता चलेगा। ये शेब यहाँ मुज़ाफ़ है, रास मुज़ाफ़ुन इलैह है। ठीक है, ये मुहव्वल अनिल मुज़ाफ़ की मिसाल है। ठीक है, व मुहव्वल अनिल मफ़ऊल, दूसरी चीज़ मुहव्वल की जो किस्में हैं वो क्या है, मुहव्वल अनिल मफ़ऊल है। ठीक है, नहू मिसाल के तौर पर, यानी मुहव्वल अनिल मफ़ऊल होकर वो तमीज़ बनेगा, ये उमरात है। पहले मुहव्वल अनिल फ़ाइल होकर तमीज़ बना है, उसके लिए तमीज़ बना है। दूसरा मुहव्वल अनिल मफ़ऊल होकर क्या बनाएंगे, वो तमीज़ बनाएंगे। वफ़ज्जरनल नहू वफ़ज्जरनल अर्ज़ उयूनन, वफ़ज्जरनल अर्ज़ उयूनन, हमने ज़मीन को शिगाफ किया, उसको चीरा, फिर वहाँ से उयूनन चश्मे जारी किए, उयून जमा है। ठीक है, चश्मे जारी किए। असलहू, इसका असल क्या है, वफ़ज्जरना, हमने ज़मीन को शिगाफ किया, उयून अल अर्ज़ी, ज़मीन में से क्या है, चश्मे जारी किए। तो यहाँ पे उयून क्या है, तमीज़ है, उयूनन क्या है, ये तमीज़ है। और यहाँ पे अगर आप यूँ एराब लगाए तो वफ़ज्जरना फ़ेल फ़ाइल, उयून जो है तमीज़, अल अर्ज़ फिर उयून मुज़ाफ़, अल अर्ज़ क्या है, मुज़ाफ़ुन इलैह है। अल अर्ज़ जो है अर्ज़ा यहाँ पे है ना, वफ़ज्जरना अर्ज़ा मुज़ाफ़ुन इलैह है, नहीं मुज़ाफ़ है, अर्ज़ा मुज़ाफ़ है, अर्ज़ा मुज़ाफ़ है, और ये क्या बन रहा है, मुहव्वल अनिल मफ़ऊल बन रहा है। ठीक है, तो आपने उयून तमीज़ बनाना है, अल अर्ज़ा जो कि उसके लिए मुज़ाफ़, और उयून है, उयून मुज़ाफ़, और अल अर्ज़ी मुज़ाफ़ुन इलैह है। अल अर्ज़ी ये जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का इराब जो है मजरूर होता है, तो इस एतबार से आप कहेंगे कि यहाँ मुहव्वल अनिल मफ़ऊल जो है तमीज़ है जो कि उयून है। यानी यहाँ पर भी आप यूँ कहें मुज़ाफ़ुन इलैह मुहव्वल हुआ है किस में, तमीज़ में, और मुज़ाफ़ जो है वही उयून है। ठीक है, उयून मुज़ाफ़ है, अल अर्ज़ मुज़ाफ़ुन इलैह। असल को यहाँ भी असल को आपने इराब लगाना है असल के एतबार से। वफ़ज्जरना उयून अल अर्ज़, उयून मुज़ाफ़, अल अर्ज़ मुज़ाफ़ इलैह, तो उयून जो है मुहव्वल अनिल मुज़ाफ़ होकर मफ़ऊल तमीज़ बना है, और अल अर्ज़ जो है मफ़ऊल है। मफ़ऊल के लिए तमीज़ को मुहव्वल किया गया है, तहवील किया गया है, यूँ कहेंगे। फ़फ़ुइल फ़ीही मिस्लु मा ज़करना, वहीं जो ऊपर बयान किया है, वश्ताअल अर्रासु शैबन, वहाँ पे फ़ाइल को मुहव्वल करके उसके लिए तमीज़ बनाई, यहाँ मफ़ऊल को मुहव्वल करके उसके लिए तमीज़ बनाया है। वह मुहव्वल अन मुज़ाफ़िन गैरुहुमा, कभी हम तहवील करते हैं तो मुज़ाफ़ के ज़रिए से होता है, लेकिन ये मुज़ाफ़ के तरफ तहवील करना ना फ़ाइल के लिए होता है और ना मफ़ऊल के लिए होता है। ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम आ चुका है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।